سیلاب متاثرین کی فلاح کے لیے جہاں متعدد تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہیں بروک پاکستان نامی تنظیم جانوروں کو سیلاب کے دوران ریسکیو کرنے میں پیش رہی۔ سندھ اور پنجاب میں 8,500 سے زائد جانوروں کو ریسکیو کیا گیا۔ فلڈ میں میں اپنی ٹیمز کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں۔ ہم وہ ناردرن ایریا سے شروع ہوئے ہیں۔ بنیر میں ہم نے پہلا آپریشن جو ہے اس کو کیا، ریسکیو کی بات ہو رہی تھی، 1000 کے قریب اینیملز کو ہم نے ادھر ٹریٹمنٹ دی۔ گدھوں کے تحفظ کے لیے سرگرم NGO کے CEO ڈاکٹر جاوید اقبال گوندل نے کہا کہ اگر جانور بیمار ہوں تو انسان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگر میرے میں یہ احساس آ جائے گا کہ اگر ایک جانور ہے، اگر مجھے کوئی درد ہوتی ہے تو میں اس کی مجھے ضرورت پڑتی ہے ٹریٹمنٹ کی، علاج کی، تو یہ اینیملز بھی ہے، اس نے تو بولنا نہیں ہے، وہ تو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ ملک میں غریب خاندان روزی روٹی کے لیے گدھا گاڑی پر انحصار کرتے ہیں۔ حکومتی اور سماجی تنظیمیں مل کر جانوروں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر کے ان کی نسل کی بقا کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین اظہر بشیر کے ساتھ سدرا غیاث، ARY نیوز۔ ناظرین، سیلاب نے جہاں انسانوں کو متاثر کیا ہے، وہیں پر بے زبان جانور بھی اس قدرتی آفت کی زد میں آئے ہیں۔ مشکل کی گھڑی میں جانوروں کو ریسکیو کرنے والی تنظیمیں بھی سرگرم آئی ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق 17,000 جانوروں میں سے 9,500 سے زائد گدھوں، گھوڑوں، کھچروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دانش منیر کی رپورٹ۔ جب سیلاب آیا تو صرف انسان نہیں، بے زبان جانور بھی متاثر ہوئے، لیکن ایک نجی سماجی تنظیم نے ان جانوروں کو تنہا نہ چھوڑا۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب میں 17,000 میں سے 9,500 سے زائد گدھے، گھوڑے اور کھچروں کو ریسکیو کیا گیا۔ 30 ڈسٹرکٹ کے اندر بروک پاکستان کی ٹیموں نے راشن جانوروں کے لیے بھی دیا، انسانوں کے لیے بھی پرووائڈ کیا، ان کی اویئرنیس ریز کی، فرسٹ ایڈ کٹس دی۔ جانوروں کی صحت انسانی صحت اور روزگار کے تحفظ سے جڑی ہے، یہ کہنا ہے سماجی تنظیم کے CEO ڈاکٹر جاوید اقبال گوندل کا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ پھر اینیملز کو کنسیڈر کرنا، پھر ان کی پرائرٹیز کو دیکھنا، تو یہ چیزیں ہیں جو کہ گیپس ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کے مطابق ہزاروں خاندانوں کا روزگار گدھا گاڑی سے جڑا ہے۔ اب وقت ہے کہ حکومت اور معاشرہ مل کر ان بے زبان جانوروں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ کیمرمین سلمان الوی کے ساتھ دانش منیر، پبلک نیوز، لاہور۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں اینیمل ویلفیئر آرگنائزیشن بروک کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 2025 کے سیلاب کے دوران متاثرہ انسانوں اور جانوروں کی بحالی اور فلاح کے اقدامات، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کیے، جن میں مویشی، گھوڑے، گدھے اور کتے سمیت دیگر جانوروں کو محفوظ بنایا گیا۔ CEO ڈاکٹر جاوید اقبال گوندل نے کہا کہ سیلاب کے دوران بنیر اور شانگلہ سمیت شمالی علاقوں میں بروقت آپریشن کرتے ہوئے سینکڑوں جانوروں کو علاج اور سہولیات فراہم کی گئی، جبکہ ان کے مالکان کو بھی سپورٹ دیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے لیے نہ صرف جانوروں کی دیکھ بھال کی گئی بلکہ انسانی راشن بھی تقسیم کیا گیا تاکہ وہ مشکل وقت میں اپنے روزگار کو بچا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جانور بیمار ہوں تو انسان بھی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے جانوروں کا تحفظ براہ راست انسانی صحت اور روزگار کے تحفظ سے جڑا ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک گدھے کی قیمت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس سے غریب خاندان جو اپنی روزی روٹی کے لیے گدھا گاڑی پر انحصار کرتے ہیں شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ حکومت، ادارے اور دیگر سماجی تنظیمیں مل کر جانوروں کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں تاکہ معاشرے کے ان وائس لیس جانوروں کی آواز بن کر نہ صرف ایکو سسٹم کو محفوظ بنایا جا سکے بلکہ معاشرے میں مثبت رویہ بھی اختیار کیا جا سکے۔ بروک پاکستان کے زیر اہتمام میڈیا اورینٹیشن کا انعقاد ہوا۔ ایونٹ میں سیلاب سے نقصانات اور بحالی کے لیے اقدامات کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ ماہرین نے گدھوں کی کھال کی غیر قانونی تجارت پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا۔ ثنا علی کی رپورٹ۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے بعد متاثرہ علاقوں کی بحالی اور نقصانات کی ازالے کے لیے کیا اقدامات ناگزیر ہیں؟ بروک پاکستان نے اہم موضوع پر مباحثے کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا۔ ماہرین نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کیے گئے، مویشی، گھوڑے اور گدھوں سمیت مختلف جانوروں کو محفوظ کیا گیا۔
ब्रोक पाकिस्तान के CEO डॉक्टर जावेद इकबाल गोंदल ने कहा कि सैलाब के दौरान बोनीर और शांगला समेत शिमाली इलाकों में बर वक्त ऑपरेशन किए गए, सैकड़ों जानवरों को इलाज की सहूलियत फराहम की गई, सैलाब मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया गया। फ्लड में मैं अपनी टीम्स को भी क्रेडिट देता हूँ, अपने इदारे को क्रेडिट देता हूँ कि हम उस जगह पहुँचे एज एन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अभी लोग सोच रहे थे। फिर हमने नीड असेसमेंट की, पूरा प्लान बनाया। तो हम वो नार्दर्न एरिया से शुरू हुए हैं। बुनेर में हमने पहला ऑपरेशन जो है उसको किया। रेस्क्यू की बात हो रही थी, 1000 के करीब एनिमल्स को हमने उधर ट्रीटमेंट दी, उनको सपोर्ट किया। माहिरीन ने कहा कि गधे की खाल की गैर कानूनी तिजारत के बायस गधा गाड़ी पर इन्हिसार करने वाले मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत, इदारे और समाजी तंजीमें मिलकर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। लाहौर के मकामी होटल में पाकिस्तान ब्रोक फलाही तंजीम की जानिब से सैलाब के दौरान जानवरों की जिंदगियों को महफूज करने पर आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें चैरिटी फाउंडेशन के शुरका और CEO ने बताया कि इस साल मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बादल फटने से पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 4.2 मिलियन से ज्यादा लोग और 1.58 मिलियन जानवर मुतासिर हुए। हमें सैलाब में फंसे जानवर, खासकर गधा, खच्चर और घोड़ों को रेस्क्यू किया। ये वो जानवर हैं जिन पर मुश्किल हालात में तवज्जो नहीं दी जाती। फ्लड की बात है तो फ्लड में मैं अपनी टीम्स को भी क्रेडिट देता हूँ, अपने इदारे को क्रेडिट देता हूँ कि हम उस जगह पहुँचे एज एन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अभी लोग सोच रहे थे। फिर हमने नीड असेसमेंट की, पूरा प्लान बनाया। तो हम वो नार्दर्न एरिया से शुरू हुए हैं। बुनेर में हमने पहला ऑपरेशन जो है उसको किया। रेस्क्यू की बात हो रही थी, 1000 के करीब एनिमल्स को हमने उधर ट्रीटमेंट दी, उनको सपोर्ट किया, उनकी फैमिली को सपोर्ट किया। इवन के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको हमने ह्यूमन राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, लोकल गवर्नमेंट के साथ और इदारों के साथ नेटवर्किंग की। ताहम तकरीब के शुरका ने यह भी बताया कि हालिया सैलाब ने 4400 से ज्यादा देहात को गर्क किया, जिससे मकानात और बुनियादी ढांचे तबाह हुए। इस दौरान हजारों जानवर मौत के मुंह में चले गए। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मिलकर इंसान के साथ साथ जानवरों की जिंदगियों को भी महफूज बनाने के लिए हमें इकदाम करना होंगे। कैमरामैन खालिद रमजान के साथ उबैद खान, रूस न्यूज़, लाहौर। सैलाब से मुतासर इलाकों से इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। निजी तंजीम के मुताबिक गधों और घोड़ों समेत 17,000 से ज्यादा जानवरों को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन की फलाह के लिए जहां मुतादिद तंजीमें काम कर रही हैं, वहीं ब्रोक नामी तंजीम भी बेजुबान जानवरों को सैलाब के दौरान रेस्क्यू करने में पेश रही। KPK में 1000 जबकि सिंध और पंजाब में 8500 से ज्यादा जानवरों को रेस्क्यू किया गया। प्रोग्राम मैनेजर ब्रोक पाकिस्तान ने बताया कि सैलाब के दौरान कार्रवाई करके मुतासरा इलाकों में मवेशी, घोड़े, गधे और कुत्ते समेत दीगर जानवरों को महफूज बनाया गया है। KPK से लेके साउथ में नीचे पंजाब और सिंध के तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्रुक पाकिस्तान की टीमों ने राशन जानवरों के लिए भी दिया, इंसानों के लिए भी प्रोवाइड किया, उनकी अवेयरनेस रेस की, फर्स्ट एड किट्स दी, उसके अलावा साफ पानी भी मुहैया किया, उसके लिए हैंड पंप भी लगा के दिए। निजी एनिमल वेलफेयर के CEO डॉक्टर जावेद इकबाल गोंदल ने कहा, अगर जानवर बीमार हों तो इंसान भी मुतासिर होते हैं, इसलिए जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ बराह रास्त इंसानी सेहत और रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है। हमें गधे, घोड़े समेत दीगर जानवरों की अफजाइश और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इकदाम करना होंगे। बुनेर में हमने पहला ऑपरेशन जो है उसको किया। रेस्क्यू की बात हो रही थी, 1000 के करीब एनिमल्स को हमने उधर ट्रीटमेंट दी, उनको सपोर्ट किया, उनकी फैमिली को सपोर्ट किया। इवन के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको हमने ह्यूमन राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, लोकल गवर्नमेंट के साथ और इदारों के साथ नेटवर्किंग की। तो डंकी की पॉपुलेशन तो वैसे पार्शली इंक्रीज हो रही है। माहिरीन ने बताया कि मुल्क में गरीब खानदानों की बड़ी तादाद का रोजगार गधा गाड़ी पर मुनसिर है। वक्त है कि हुकूमती और समाजी तंजीमें मिलकर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम करें ताकि इनकी नस्ल की बका को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। ट्रेड ये जी एक ग्लोबल इशूज़ है। बेसिकली तो इसका जो आगाज़ है वो अफ्रीकन कंट्री से हुआ और ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में लीगली और इनलीगली जो है ये डंकी जो है वो फिर उनकी जो स्किन्स हैं वो फिर जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनकी डिमांड पे वो एक्सपोर्ट और होती रही, उसकी डिमांड जो है वो क्रिएट हुई और फिर उधर से जो है डंकी स्किन जो है वो मूव हुई। और पाकिस्तान में भी ये बड़ा एक अमर्जिंग थ्रेट है और हमारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है इस रीजन में वो भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम ये जो फेस हो रहा है कि ये कुछ तो लीगली गवर्नमेंट ने जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ कुछ ट्रेडिंग MOUs की हैं, लेकिन कुछ इलीगल्स भी चीज़ें जो हैं वो देखने में आई हैं। आपको याद होगा कि पिछले
दिन इस्लामाबाद में एक इलीगल उन्होंने स्लॉटर हाउस पकड़ा जिसमें एनिमल्स थे और गोश्त भी था। तो कंसर्न जो है इसको देखने की ज़रूरत है कि इसकी जो वेलफेयर्स है इसको कैसे हम मेक श्योर करवाएं। उसके अलावा ये जो इकोसिस्टम को मेंटेन करना है, ये जो इनका जो एक रोल है, जैसे 6.3 मिलियंस के करीब इक्वाइंस हैं और 38 मिलियंस जो इक्वाइंस फैमिली मेंबर हैं इसके साथ मुंसलिक हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा अगर इस स्पीशीज़ को अगर सेफ गार्ड ना किया गया, इसको सर्वाइव ना किया गया, इसकी वेलफेयर के पैरामीटर को ना देखा गया। तो ये एक एमर्जिंग थ्रेट है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं कुछ इलीगल और इलीगल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। पाकिस्तान भर में जो है वो सैलाब की वजह से शहरी जो है वो मुतासर हुए और लोगों को जो है वो रेस्क्यू करने के लिए बहुत सारे इदारों ने काम किया, इंतज़ामिया ने काम किया। इसके साथ साथ जो है वो जानवरों पर काम करने वाली जो तंजीम है उन्होंने भी जो है वो जानवरों को डाटा जो है वो कलेक्ट किया और उनको जो है वो रेस्क्यू करने के साथ दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया और उनके हकूक़ पर जो है वो अभी भी काम कर रहे हैं। इस वक्त जानवरों के हवाले से काम करने वाली तंजीम के प्रोग्राम मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि अब तक कितने जानवर जो है वो इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए और क्या क्या जो है वो काम उनके लिए किया गया है। तो हमारी तंजीम ब्रुक पाकिस्तान जो है वो स्पेसिफिकली इक्वाइंस जिनको घोड़ा गधा खच्चर पे काम करती है और जब जैसे डिज़ास्टर फ्लड आया इस कंडीशन में हम फिर तमाम जानवरों, सिर्फ घोड़ा गधा खच्चर नहीं, इसके अलावा तमाम लाइफ स्टॉक के जानवरों को भी हमने फ्री ट्रीटमेंट दी, उनके मालिकान को हमने फ्री राशन दिया, जानवरों को राशन दिया। उसके अलावा हमने उनके मालिकान की तरबियत की ताकि वो अपने जानवरों का खुद हल्का फुल्का इलाज मुआवजा जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं वो प्रोवाइड कर सकें। तो हम अगर बात करें कि ब्रुक पाकिस्तान ने तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट में KPK से लेके सिंध तक हमने 30 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया। हमारा अपना ऑपरेशन जो है वो 44 डिस्ट्रिक्ट्स में है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें से 30 डिस्ट्रिक्ट जो फ्लड से इफेक्ट हुए उसके अंदर हमारी टीमों ने ग्राउंड पर जाके काम किया और अब तक तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो 10,000 के करीब जानवरों को और 5,000 के करीब उनके जो मालिकान थे उनको राशन और उनको फर्स्ट एड और ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। एक तो सबसे बड़ा अगर मसला देखें तो मोबिलिटी का है, क्योंकि रोड नेटवर्क बड़ा डिस्ट्रॉय होता है, तो बहुत सारा ऐसा इलाका होता है जिस पे आप रीच नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते और आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगता कि कहाँ कहाँ पे लोग फंसे हैं। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम ग्राउंड पे जानवरों को जहाँ हमें लगा कि लोग फंसे हुए हैं वहाँ से हमने जानवरों को रेस्क्यू भी किया। हमारी टीम्स ने जो जितना कर सकते थे, अगर वो नहीं कर सकते थे तो 1122 या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के तहत उन्होंने उन जानवरों को वहाँ से रेस्क्यू किया। तो और मैं समझता हूँ कि जो बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है उसमें एक तो जिल्द की बीमारियाँ, आंखें ख़राब होना, ज़ख्मी बहुत होते हैं जानवर, क्योंकि जिस तरह लैंड स्लाइडिंग हुई या कोई चीज़ गिर गई, घर गिर गए, उसमें जानवर ज़ख्मी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो टेटनस फैल सकती है, कुछ जूनोटिक बीमारियां हैं। वन हेल्थ की जब हम बात करें तो एक जानवर, इंसान और उसकी इन्वायरमेंट जो है वो एक ही चीज़, तो अल्टरनेटली कोई ना कोई चीज़ जिस पे नुकसान है, जिससे बीमारी फैलती है तो इंसानों को भी लग सकती है। तो इस तरह ये आउटब्रेक से बचाने के लिए कोशिश यही करते हैं कि हम उनको, उनके मालिकान को तरबियत दें ताकि वो इस मौके पे अपने जानवरों की सही तरह देखभाल कर सकें और बीमारियों को रोकने में। जी बहुत शुक्रिया जी। तंजीम की जानिब से अब तक जो है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार जानवर हैं जिनको जो है वो फर्स्ट एड दी गई और उसके साथ साथ उनको जो भी मुश्किलात का सामना था, ख़ास तौर पर जो खुराक, पानी और दीगर जो उनको खुले आसमान तले वो थे जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का खदशा था, बीमार होने का खदशा था, तो वो इन्होंने जो है वो वहाँ पर रेस्क्यू जो है वो टीमें इनकी मौजूद थी जिन्होंने उनको फर्स्ट एड फराहम की और साथ ही साथ उनको चारा और दीगर जो अद्वियात हैं वो फराहम की। और अब तक तकरीबन 1.6 मिलियन के करीब जो जानवर हैं वो इस सैलाब की वजह से मुतासिर हो चुके हैं।